two parameters need to be calculated. One is your we will solve this flexible pavement using IRC 37. Okay, this is the continuation, and here is the question. As we know that we require two parameters for solving this type of problem. That is your CBR value, okay, and another is your capital N, which is the number of repetition of cumulative standard axle load. Okay, and yesterday we solved one problem how to calculate capital N. Okay, so here is the problem. Okay, where is the problem? This one. See, please note down this data which are provided to you in the question. Okay, now we need to design. That means what? We need to design the thickness. We need to calculate the pavement thickness as per IRC 37. Okay, so for that we need to calculate capital N. So what are the data they have given? See, design the pavement for construction of a new national highway. Okay, see why this is provided. This is provided for the design life. Okay, design life they have not given in the question, so we have to assume design life for national highway. Okay, and in the IRC code itself they have given you the design life. Okay, where we will see, you go to page 11. See, in page 11, we will get the design life value, small n value. Okay. See, for it is recommended that pavement for national highways and state highways should be designed for a life of 15 years. That means for national highway, if in question they have given you national highway or state highway, then we have to assume n as 15 years. Okay. If they have given expressway or urban roads, that means the roads which are in your cities. Okay, if they have given that design the thickness for urban road or expressway, then in that case we have to assume design life small n as 20 years. Okay, and for other categories of roads, the design life may lie between 10 to 15 years. It may be adopted between 10 to 15 years for other road. Okay, so in the question they have given, see, design the pavement for construction of a new national highway. So in this case, what will be the value of N for national highway? Anyone? As 15 years. Yes, 15 years. Okay. With the following other data. See, other data is what? It is given two lane. The highway is what? It is single carriageway, two lane. Now, why it is given? This is given for calculating which value, which term? That is your D. lane, yes, capital D. D, lane distribution, right? Lane distribution factor, capital D. Okay, we have already seen that in this case, see, D will be how much? 75%. Yes, see, for single carriageway, okay, single carriageway, single lane, D is 100, single carriageway, two lane, it is 75%, that is 0.75, very good. Okay, so you can assume D as 0.75. Okay, now what is the question? Other values, traffic count as per last count. In bracket it is given what? Before construction. So this is A or P. ये वाला क्या है? A वैल्यू दिया है या P वैल्यू दिया है? A1. नहीं, A मतलब आफ्टर कंस्ट्रक्शन का जो ट्रैफिक काउंट है. ओके, सो दिस इज कैपिटल P वैल्यू. ओके, नाउ यूजिंग कैपिटल P वी हैव टू डिटरमाइन कैपिटल A. ओके, जिसका फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल A? P into 1 plus R to the power. Yes, P into 1 plus R to the power X. Okay. Yes, ma'am. X now you can assume 3 to 4 years you can assume. Okay, and R is what? This is the traffic growth rate, annual growth rate of traffic. Okay, in मतलब कितना percentage में बढ़ेगा traffic per year. ठीक है, if it is not given then what happens? Assume R as your
7.5%, which is 0.075. Okay. So यहाँ पे तुम्हारा x एज्यूम करना है, r को भी एज्यूम करना है, इफ नॉट प्रोवाइडेड, सो वी कैन गेट कैपिटल A, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसे, टाइप्स ऑफ लोड तो नेशनल हाईवे, ठीक है। VDF दे हैव गिवन, यू नीड नॉट टू कैलकुलेट VDF, सो VDF इज 2.5 एंड और एक फैक्टर क्या चाहिए था हमको, CBR, व्हिच इज गिवन एज 4%। ओके, सो कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n? n का वैल्यू निकाल सकते हो एवरीवन यूजिंग दिस फॉर्मूला? Yes, ma'am. निकालो तो क्या होगा n का वैल्यू। सपोज दिस इज द फॉर्मूला, ओके, ये वाला फॉर्मूला है। इधर अच्छा हम दे देते हैं फॉर्मूला तुम लोग को, वेट, सी दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे क्या क्या दिया है, आर नॉट गिवन, सो एज्यूम इट एज 7.5%, मतलब 0.075। एन क्या है, डिजाइन लाइफ ऑफ नेशनल हाईवे विच इज 15 years, ओके। ए नॉट गिवन, बट इंस्टेड ऑफ ए व्हाट दे हैव गिवन, पी, तो ए निकालो, पी का वैल्यू यूज करके। डी इट इज गिवन एज सिंगल कैरेज में 2 लेन, सो दिस विल बी 75% मींस 0.75। एफ का वैल्यू दिया है 2.5। एल एस एफ नॉट गिवन, सो आई सेड एज्यूम इट एज 1, ठीक है। यहाँ से जो भी आएगा वो होगा तुम्हारा CSA, बट फॉर डिजाइनिंग वी नीड टू फाइंड n इन टर्म्स ऑफ MSA, तो इसलिए 10⁻⁻6 कर देंगे हम। ओके, सो प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ये फॉर्मूला सबके पास है तो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो n कितना आएगा इन MSA? f का वैल्यू नोट डाउन किया था, f का वैल्यू कितना था, 2.5 आई थिंक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2.5, okay. See, P is 322 CVPD, commercial vehicle per day, and we know A is equals to क्या था, A will be equals to P1 plus R to the power n, X, okay. Assume X, ये तुम x को एज्यूम कर सकते हो, x एज इन दिस केस हमने कितना लिया है, x एज 3 years पकड़ा है, ठीक है। x का वैल्यू मतलब पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 3 years। तो पहले a वैल्यू कितना है ये बोलो, a का वैल्यू कितना है, कितना CVPD आ रहा है, a इक्वल्स टू 400.019. ओके, सो 400 CVPD, ये सबका आ रहा है 400 CVPD। नहीं वो कर रहा है देख। Yes, ma'am. I am 400. तो 400 CVPD आएगा, ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है तुम्हारा इस वाले में पुट करो, ठीक है। तो कितना MSA आएगा, a का वैल्यू आ रहा है तुम्हारा 400 CVPD।
मैम 7.1. 7.1. बाकी देर बाकी लोगों का कितना आ रहा है? 1.17. 1.17 कैसे आ रहा है? देखो 365 7.1. पहले ये जो ब्रैकेट का 7.1. कैलकुलेट कर। 7.1. अच्छा, वेरी गुड, 7.1. व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, ma'am. 7.1. बाकी लोग का क्या है? हाँ मैम 7.1. मैम 7. आ रहा है सबका? Yes, ma'am. ओके, तो 7.15 MSA। तो हमको क्या चाहिए था? वी नीड N एंड वी नीड CBR। ओके, अब दोनों यूज करके यूज द N का पता चल गया, CBR पता चल गया। दो मेथड है। ओके, एक है कि तुम लोग ओनली यू कैन कैलकुलेट ओनली द टोटल थिकनेस, और यू कैन कैलकुलेट इंडिविजुअल लेयर थिकनेस एज वेल एज टोटल थिकनेस। ठीक है, इंडिविजुअल लेयर आ जाएगा जब सम अप करने से टोटल तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमको चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है? वी नीड टू यूज द ग्राफ। ये वाला ग्राफ हमने पीडीएफ के अंदर अटैच कर दिया है, लेकिन यूजिंग IRC 37 कैसे करोगे? तुम्हारा 7.18 आ रहा है, राइट? 7 पॉइंट समथिंग MSA आ रहा है N का वैल्यू, एंड CBR इज 4। तो हम बोले थे कौन सा चार्ट फॉर फाइंडिंग टोटल थिकनेस के लिए कैसे आएगा? टोटल थिकनेस के लिए पेज जाओ, पेज नंबर 8 में। ठीक है, पेज 8 देखो, यहाँ पे दो चार्ट है। ओके, तो फिर कौन सा फॉलो करेंगे? बोलो, फर्स्ट या सेकंड? विच चार्ट? Second one. Second one. सेकंड क्यों? सेकंड क्यों? दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? देखो, डिजाइन चार्ट फॉर ट्रैफिक, ये किसके लिए है? इफ योर ट्रैफिक कैपिटल N का Traffic. वैल्यू 1 to 10 MSA के अंदर रहेगा, देन वी हैव टू यूज दिस चार्ट। ओके, और इफ योर ट्रैफिक मतलब कैपिटल N का वैल्यू 10 से 150 MSA में रहेगा, वी हैव टू यूज दिस चार्ट। तो हम लोग का Yes, ma'am. कितना आ रहा है? 7 पॉइंट समथिंग आ First रहा है, chart मतलब Fast we start. have Fast to start use होगा. this charge. Okay, it is lying between these two. Yes. So first chart. Okay, अब फर्स्ट चार्ट में तुम्हारा क्या बोलते हैं? CBR कितना है? 4 है, राइट? अब चेक करते हैं CBR 4 कौन सा टेबल, कौन सा होगा? दिस वन। ये वाला ग्राफ हमको यूज करना है, CBR इक्वल्स टू 4, राइट? देखो, CBR इक्वल्स टू 4 में ये वाला ग्राफ हमको यूज करना है। ओके, और हम लोग का MSA कितना आ रहा था? हम लोग का MSA आ रहा था 7.1. 7.1, इट विल बी समवेयर हियर। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमको कैसे प्लॉट करना है? हम बोले थे पहले ये वाला एक्सिस में जाओ। ठीक है, एक्स एक्सिस में जाओ, एक्स एक्सिस में गए तुम। ठीक है, अब 7.1 मतलब यहाँ पे समवेयर यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसको तुम परपेंडिकुलरली राइज करो। ठीक है, राइज करते 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 जाओगे, कहाँ पे टच करेगा? देखो, ये CBR इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे टच करना चाहिए, राइट? परपेंडिकुलरली हम ऊपर की तरफ गए। ओके, करके यहाँ पे टच किया, जैसे ऐसे ऊपर 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 हम गए। ठीक है, अब यहाँ पे टच किया, CBR इक्वल्स टू 4। अब इसको कहाँ पे जाना है? नाउ व्हाट दे आर आस्किंग द टोटल थिकनेस, सो नाउ वी हैव टू मूव टू द y एक्सिस। ठीक है, अब y एक्सिस की तरफ जाओ, इस तरफ जाओ। ठीक है, यहाँ से इसका करस्पॉन्डिंग y एक्सिस कहाँ पे होगा? देखो, करते 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 जाओगे तो इट विल बी समवेयर हियर, राइट? तो समवेयर हियर। तो इसको तुम लोग आई एस्टिमेट करके लिख सकते हो कितना होगा, क्या कितना होना चाहिए? देखो, तो हमको तो ये वाला तो बीच में ही लग रहा है, बीच के थोड़ा ऊपर लग रहा है। सो इट विल बी मतलब 650 या 660 mm के बीच में होगा, राइट? ये देखने से क्या लग रहा है? 650 विल बी समवेयर इन द मिडल, इससे थोड़ा ऊपर है तो 660 mm हम पकड़ेंगे। ठीक है, 660. Yes, ma'am. अच्छा, ये वाला तुम लोग एकदम स्केल पेंसिल लेकर अच्छे से करना है। ठीक है, यहाँ पे तो रफली कर दिए हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं एज पर आवर आई एस्टिमेशन, हम लोग ले रहे हैं 660 mm। तो दिस इज द टोटल थिकनेस फॉर ट्रैफिक इक्वल्स टू 7.1 एंड CBR इक्वल्स टू 4। ओके, तो यहाँ पे देखो, मेरा सपोज यहाँ पे देखो, ये हमने यहाँ पे 630 ले लिया है। अगर तुम अच्छी तरह से करोगे तो इट विल बी समवेयर हियर। ओके, तो 660 630 तुम देख लेना है, खुद के ऊपर है ये, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, जो जितना एक्यूरेटली करेगा
उसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला होगा, इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा एरर होने का चांसेस है, राइट। तो अब उसको हम परफेक्टली कैसे करेंगे, उसके लिए वी नीड टू फॉलो अनदर चार्ट। वो वाला क्या था, दैट वाज योर प्लेट्स, जो प्लेट्स हम बोले थे, ऐसा वाला जो प्लेट्स है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ प्लेट्स वी नीड टू यूज। ओके, तो इसके लिए कौन सा प्लेट देखना है ट्रैफिक रेंज फर्स्ट देखना है, ठीक है। इट इज बिटवीन 1 to 10 ms है हम लोग का, ठीक है, 1 to 10 ms है। अब उसमें भी बहुत सारा तुम्हारा प्लेट्स आ जाएगा जिसमें सीबीआर का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होगा, जैसे कि ये वाला देखो, दिस वन। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो पेवमेंट कैटलॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ट्रैफिक रेंज 1 to 10 है, ठीक है, बट वी विल नॉट यूज दिस चार्ट क्योंकि हम लोग का सीबीआर 4 था, सो ये वाला यूज नहीं होगा। सेकंड में जाते हैं, सेकंड का सीबीआर कितना है, 3, नहीं होगा। थर्ड में जाते हैं, थर्ड में देखो 1 to 10 ms है, 7 ms है, ठीक है, 1 to 10 के बीच में है और सीबीआर है 4, राइट। सो कैन वी यूज दिस चार्ट नाउ? तो हम लोग के लिए कौन सा चार्ट सही रहेगा, ये वाला चार्ट, क्योंकि क्वेश्चन में Yes, सीबीआर 4 दिया है और हम लोग का एन आ रहा है 7.1, ठीक है। अब आते हैं हम लोग का क्या है, अब इस चार्ट को वी कैन यूज नाउ। फ्रॉम दिस चार्ट हम लोग का ये वाला कॉलम देखो, फर्स्ट क्या देखना है, ये देखना है, फिर सेकेंड ये रो देखना है, फिर इसके बाद ये कॉलम देखना है, ठीक है। अब ये कॉलम में देखो कितना है, 1 के लिए इतना इतना होगा, 2 MSA होने से इतना इतना वैल्यू होगा, ठीक है, 3 MSA होने से इतना होगा। अगर तुम्हारा 10 MSA होता है तो डायरेक्टली इस चार्ट से हम लोग पूरा देखो वैल्यू निकाल आएगा डायरेक्टली, टोटल थिकनेस इतना है और इंडिविजुअल लेयर का थिकनेस इतना है, ओके। इतना बिटुमिनस कंक्रीट, इतना डेंस बिटुमिनस मैकेडम, इतना ग्रैनुलर बेस, इतना ग्रैनुलर सब बेस थिकनेस होना चाहिए। लेकिन हम लोग का कहाँ पे आ रहा है, इट इज लाइंग बिटवीन दिस टू वैल्यूज, मतलब 5 और 10 के बीच में हम लोग का क्या है, हम लोग का आंसर है 7 है, राइट। आवर आंसर इज 7.1 ms है। तो ये 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं, इन दोनों के बीच में है, तो ऑब्वियसली इसका भी करस्पॉन्डिंग थिकनेस विल बी, इन दोनों का जो करस्पॉन्डिंग थिकनेस है उनके बीच में ही रहेगा, मतलब इन सबके बीच में तुम्हारा आंसर रहेगा, ठीक है। क्लियर है ये वाला? तो क्या करना है उसके लिए, वी नीड टू डू इंटरपोलेशन, ठीक है। अगर 5 के लिए इतना है, 10 के लिए इतना है, तो 7.1 के लिए टोटल थिकनेस कितना है निकालो। सिमिलरली 5 के लिए अगर तुम्हारा वियरिंग कोर्स इतना है, 10 MSA के लिए वियरिंग कोर्स इतना थिकनेस है, इतना mm थिकनेस है, तो 7.5 MSA के लिए कितना थिकनेस होगा, इंटरपोलेशन करके, सेम इंटरपोलेशन करके निकालना है, ओके। तो निकाल के देखेंगे कि ऐसा आएगा। तो इट इज कमिंग आउट टू बी, तो ऐसे आएगा, देखो बीच में कर दो। तो वो हम लोग ने चार्ट ले लिया है फॉर सीबीआर 4 और ट्रैफिक MSA 1 to 10 MSA। देखो 5 का जो है यहाँ पे पुट कर दिया, देखो यहाँ से जो है 5 का 620, 25, 60, 25, 285 यहाँ पे हम पुट कर दिए, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग 10 का भी यहाँ पे पुट कर दिए, लेकिन हम लोग का इन दोनों के बीच में, तो इसलिए हम बीच में एक वैल्यू गैप रख देके क्या करेंगे, 7.15 इधर रख दिया। अब इन दोनों का करस्पॉन्डिंग थिकनेस निकालना है। तो कोई बता सकता है ये थिकनेस कैसे निकल आया, हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस थिकनेस? एनीवन? कैसे आया ये वाला थिकनेस? हेलो, इसमें मॉडल की बात करे छे तू यूनिटरी मेथड से करिए किया है, ठीक है। तो फिर हम तुम लोग को देते हैं ये वाला वैल्यू है, ठीक है, ये चार्ट यूज करना है। फिर आंसर इज 7 कितना है, 7.15 है, ठीक है। 7.15 MSA का निकालो, इन दोनों के बीच का इंटरपोलेट करके निकालो, तो कैसे निकालेगा, कितना वैल्यू आ रहा है, हाउ? ठीक है, कोई एक इसका बीच का वैल्यू बोलो, कोई एक इसका बीच का वैल्यू बोलो, कोई एक इसका और इसका बोलो। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है तुमको, एक यहाँ पे लिख लो, ये है बीच में, इन लोग के बीच में क्या रहेगा, 7.1, ठीक है। सपोज इन दोनों के बीच का वैल्यू है सपोज x, 5 और 10, ठीक है। हाँ, तो अब देखो क्या करना है, जो हम पहले किए थे, फॉर्मूला डिराइव जब कर रहे थे ना उसका ESWL में, वैसा ही है। देखो 7.1, ठीक है, -5,
इक्वल्स टू, इधर भी लिख दो क्या होगा, 7.51 का करस्पॉन्डिंग क्या है, x है, ठीक है, और 5 का करस्पॉन्डिंग ম্যাম वैल्यू ওটা कितना है, 654.4 হবে। इंग्लिश से बोलो तो, अब डिवाइड कर दो। 654.4। আচ্ছা ঠিক আছে, ও একজন বার করেছে, तो 10 - 5, तो इन दोनों का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है वो भी यहाँ पे माइनस कर दो। 700, 10 का करस्पॉन्डिंग है 700 माइनस 5 का करस्पॉन्डिंग है 620, ठीक है, करके यहाँ पे x का वैल्यू निकालो। तो किसी ने निकाला कितना है x का वैल्यू, 626, क्या तो सच है, करेक्ट। नहीं 654। 654, हाँ, ये 7 मैम कौन सा 626 आया मैम, 626 आया। आया, ये वाला कितना लिया, ये वाला वैल्यू वो डिपेंड करे, 7.14 7.14 15। तो देखते हैं, हाँ मेरा शायद मेरा कैलकुलेशन भी गलत हो सकता है। 7.15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 700 माइनस 620 प्लस 620, ओ ये गलत है, 654 आ रहा है, हाँ मैम 654 तो वेरी गुड, ये गलत है। अब कोई आंसर ये बोलेगा तो क्या कैलकुलेट किया पता नहीं, 654 गलत आ हो रहा गया, है, हाँ गलत हो गया। 654 वैसे 25 और इसके बीच के निकालो, कुछ नहीं, ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे x माइनस 25, फिर नीचे रहेगा 40 माइनस 25, 7.1 सॉरी माइनस 5, ठीक है, 10 माइनस 5 31.45। 41 31 ये वाला मिडिल सेकंड वाला 31.5। x মাইনাস, ম্যাম আমার ঠিক আছে দেখছি, আমি দেখছি তোমরা ক্যালকুলেট করো তো, দেখো কত কত আসছে। ম্যাম 31.3। আচ্ছা আই লেট মি চেক, 7.1 minus 5 divided by 5 into 15 plus 25, 31.3 ऐसा कुछ आ रहा है, 31.45। अच्छा Yes, ma'am. 31.3। हाँ 31.45 या 3 या 15 अगर लोगे तो 40 आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे करके कर लेना है, यही फॉर्मूला यही फंडा है, देखो ठीक है, दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, फिर नीचे क्या करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 10 माइनस 5 इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, यही फंडा है, ठीक है। आई थिंक क्लियर है सबको कैसे निकालना है। सो दिस आर द रिक्वायर्ड टोटल थिकनेस एंड रिक्वायर्ड इंडिविजुअल लेयर थिकनेस, वेयरिंग कोर्स इतना mm, बाइंडर कोर्स इतना mm, ग्रैनुलर बेस कोर्स इतना mm, सब बेस कोर्स इतना है, अगर सबको ऐड कर दोगे यहाँ पे टोटल जो आएगा वही होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। सो दो मेथड से हो गया है, ओके। नाउ लेट अस सॉल्व आवर टुडेज असाइनमेंट, ठीक है। यस मैम। टुडेज असाइनमेंट में क्या है, देखो ये है, हमको ये सिर्फ तुम क्या लिखोगे बोलो तो, ग्रुप ए 1 2 1 का ये आंसर, 2 का ये आंसर करके लिख लेना है कॉपी में, ठीक है। 1 का डी होगा। अच्छा 1 का क्या होगा देखो तो, ग्रुप ए में स्टैंडर्ड एक्सेल लोड्स फॉर डिफरेंट एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रोड व्हीकल्स, ठीक है। आंसर डी होगा। डी, यस मैम। डी या बी बोलो क्या है, डी आर सेम एज दोज ऑफ लीगल एक्सेस लिमिट। इज इट सो एवरीवन? लीगल एक्सेल मतलब है कि इतना मैक्सिमम लोड वो लीगली कैरी कर सकता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड एक्सेल लोड है कि हम लोग एक फिक्स कर दिया है, उसका स्टैंडर्ड इतना है, ठीक है, लेकिन लीगली वो इतना कैरी कर सकता है। देखो हर वक्त हमारा क्या, अगर 8.2 स्टैंडर्ड एक्सेल है तो वो क्या 8.2 ही कैरी कर सकता है? बहुत सारे व्हीकल्स तो उससे भी ज्यादा लोड लेकर जाते हैं, राइट, स्टैंडर्ड एक्सेल लोड से भी ज्यादा लोड लेकर जाते हैं, लेकिन उसको हम एक लिमिट कर देते हैं कि ठीक है तुम स्टैंडर्ड एक्सेल लोड से ज्यादा ले सकते हो लोड, लेकिन एक लिमिट तक होगा, एंड दैट लिमिट इज योर लीगल एक्सेल लोड, मतलब लीगली तुम इतना लोड कैरी कर सकते हो, ठीक है। सो क्या होगा, अब बोलो क्या होगा आंसर?
C your ma'am. standard axle load will be less than legal axle load. Yeah, it will be more. बोलो. स्टैंडर्ड एक्सेल लोड एक स्टैंडर्डाइज कर दिया है, ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा ट्रैफिक, ज्यादा व्हीकल्स लोड लेकर जा सकता है, ज्यादा लोड लेकर कैरी करता है, राइट? लेकिन हम लोग C option. उसको लेकिन Please. लिमिट कर दे रहे कि इतना ही तुम लोग लेकर जाओगे, उससे ज्यादा अब नहीं लेकर जाओगे. आंसर ए. स्टैंडर्ड एक्सेल लोड शुड बी लेसर. बोले थे ये 8 किलो न्यूटन 8 टन तक कैरी कर सकता है, ये तुम्हारा 8 स्टैंडर्डाइज, ठीक है, 8 टन इज द स्टैंडर्ड व्हीकल, लेकिन वो 10 टन तक भी कैरी कर सकता है, ठीक है. तो लेकिन उसको 10 टन तक ही उसको लिमिट करना है, उससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो इलीगल हो जाएगा, ठीक है. तो योर स्टैंडर्ड एक्सेल लोड विल बी लेसर देन लीगल एक्सेल लोड. क्लियर? Next is what? The method of design of flexible pavement as recommended by IRC is क्या है बोलो? B. सीवियर में. हाँ, B. B क्योंकि CBR यूज कर रहे हैं ना हम लोग, राइट? Now rigidity factor is 1 when your tire pressure is C होगा. 7 kg हम लोग बोले थे ना, एक टायर प्रेशर होता है, अगर कॉन्टैक्ट प्रेशर टायर प्रेशर इक्वल्स टू 7 kg पर सेंटीमीटर हो जाएगा, तुम्हारा रिजिडिटी फैक्टर क्या है? रेशियो है, राइट? दोनों का रेशियो, सो इट विल बी 1. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू IRC 37 द स्टैंडर्ड एक्सेल लोड फॉर सिंगल एक्सेल कितना kg? ये तो बोलना ही पड़ेगा. 60. Yes, so 8160 for single axle load. Very good. Now CBR, हाँ, yeah, yes, A. CBR test is performed for the quick deformation of the quality of which material? Yes, D, subgrade. क्योंकि हम लोग subgrade का ही CBR वैल्यू बोल रहे थे ना, उसका ही मटेरियल प्रॉपर्टी कैसा होगा, स्ट्रेंथ बियरिंग कैपेसिटी कैसा होगा, उसके ऊपर ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोल सकते कि इतना लोड वो कैरी कर सकता है, इतना थिकनेस देकर इतना लोड कैरी कर सकता है. आई थिंक दिस इज क्लियर एवरीवन. Yes ma'am. Yes ma'am. ओके, तो ऐसा क्वेश्चन, हाँ, एमसीक्यूज अगर आएगा तो ऐसा आई थिंक अब सबको कर पाओगे, राइट? अब आते हैं न्यूमेरिकल्स में. देखो न्यूमेरिकल्स का क्या है, फाइंड ESWL, ठीक है, एट डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, 2 दे दिया है. फॉर द, ये वाला कौन सा याद है सबको? ESWL का फॉर्मूला याद है? ये है ESWL का फॉर्मूला. देखो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है. तो उसमें क्या क्या चाहिए, देखो लॉग ESWL निकालने के लिए क्या चाहिए था, व्हील लोड कितना है. व्हील लोड मतलब किसमें व्हील लोड, तुम्हारा एक, अगर ये डुअल टायर है, डुअल टायर कॉम्बिनेशन है, तो एक टायर में कितना लोड है, दैट इज व्हील लोड. ओके, मतलब कि देखो ये वाला एक्सेल है, ये है सिंगल एक्सेल डुअल टायर है, अगर इसको हम बड़ा करेंगे तो ऐसा आएगा. तो इस वाले में जो इंडिविजुअल व्हील में जो लोड है दैट इज द P, ठीक है. तो ये वाला फॉर्मूला में वो P है तुम्हारा, ठीक है. और क्या चाहिए हमको, डेप्थ चाहिए, मतलब जो पेवमेंट थिकनेस विच इज Z, ठीक है. और ये स्मॉल d चाहिए. स्मॉल d इज व्हाट? इट इज द स्पेसिंग बिटवीन इनर टायर वॉल्स, मतलब कि ये जो इनर टायर वॉल्स का जो है स्पेसिंग, ये जो दो टायर है उनके बीच का गैप जो है दैट इज d, और सेंटर टू सेंटर जो गैप है इन दोनों के बीच में दैट इज S. आई थिंक दिस इज क्लियर. ये फॉर्मूला लिख लो सब लोग अभी, प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला. Yes ma'am. हो गया, ठीक है, सबने लिख लिया ये फॉर्मूला? Yes ma'am. ओके, नाउ लेट अस गो टू द प्रॉब्लम. अब बोलो क्या बोला है, फाइंड ESWL एट द डेप्थ ऑफ, मतलब Z है तुम्हारा एक केस में 5 सेंटीमीटर, एक केस में Z है 20 सेंटीमीटर, ठीक है. फॉर अ डुअल व्हील कैरिंग 2044 kg ईच, मतलब दो व्हील्स है, उसमें एक व्हील कितना कैरी करेगा, 2044 kg. सो दिस इज कैपिटल P, ठीक है. अगर डुअल कॉम्बिनेशन इतना केजी लोड कैरी कर रहा है तो क्या हो जाएगा, तब हमको डिवाइड कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ईच बोल दिया है, सो ये P है, ठीक है. द सेंटर टू सेंटर टायर स्पेसिंग इज 20 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है, दिस इज स्मॉल s. ओके,
एंड द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू टायर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है, स्मॉल डी दिया है। तो कैलकुलेट करो, दो केस होगा, एक है z इक्वल्स टू 5 रहेगा, दूसरा में z इक्वल्स टू 20 रहेगा। क्या क्या दिया है, s इक्वल्स टू है 20, तुम्हारा p इक्वल्स टू है 2044 kg, तो इसका जो भी यूनिट है ESWL का भी वही यूनिट होगा, ठीक है। और d है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। दिस इज द फॉर्मूला, निकालो। ऐसे फर्स्ट में क्या आ रहा है, ESWL फर्स्ट केस में वेट z इज इक्वल टू क्या है, 5 सेंटीमीटर में। हम भी कैलकुलेट करते हैं, चलो। S is 20, ओके। मैम 3.310। আচ্ছা প্লাস লগ, দেখি আমিও করছি। পিটা হচ্ছে 2044 না পি? यस मैम। তো 2044 ই তো আসবে মনে হয়। দেখো কি বলেছিলাম, যখন z, देखो योर ESW विल बी 2044 ओनली। सबका आ रहा है? ये एंटी लॉग करना है, एंटी लॉग। কি নাম কে বলেছে এখানে 3 পয়েন্ট সামথিং, লগ ESW विल बी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। उसको एंटी लॉग 10 बेस मतलब 10 टू द पावर वो कर देना है, 3.1 जो भी है आंसर। क्लियर? यस मैम 2043.99। 2044। अच्छा, ये लोग ये कैलकुलेट नहीं करने से भी हो जाता। 2044 तुम डायरेक्टली भी बोल सकते थे, कैसे? व्हेन आई सेड दैट व्हेन योर z इज इक्वल्स टू d/2, अब बोलो d कितना है, 10 है, ठीक है। अब d/2 कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, राइट। तो व्हेन योर z इज d/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर, तब तुम्हारा ESWL विल की कितना हो जाएगा, p, जो p है वही p वैल्यू रहेगा, मतलब 2044 ही रहेगा। जैसे कि ये वाला देखो, व्हेन योर log 10 मतलब z का वैल्यू, ये जो है z का वैल्यू d/2 हो जाएगा, योर ESWL विल बी p इटसेल्फ। समझ में आया? तो हमको कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं था, डायरेक्ट तुम लिख सकते थे, क्योंकि d/2 5 सेंटीमीटर मतलब क्या है, 10/2 है, मतलब 10 क्या है, d है, ठीक है। सो d/2 इक्वल्स टू 5 ही था, तो इसलिए उसका ये p वैल्यू आएगा, ESWL विल बी p इटसेल्फ, ओके। अब दूसरा केस क्या था, दूसरा था 20 सेंटीमीटर। योर z विल बी नाउ 20 सेंटीमीटर, निकालो उसका कितना होगा, log 10 to into log, सबका आ गया तो
Z है 20 डिवाइडेड बाय 10। अनिमेश ऐसे छे हेलो आछो की गो मैम 3244 3.51 आ रहा है, इसको एंटी लॉग कर देना है। 3244 आ रहा है सबका? हाँ, Yes, ma'am. 3244 बाकी देर ऐसे छे? तो फर्स्ट केस में आ रहा है 2044, सेकेंड में आ जाएगा 3244 kg। क्लियर? आंसर करो, है ना तो बोलो। Yes, ma'am. ओके अब ये वाला तुम लोग कर सकते हो। देखो ये वाला जो है, ठीक है, डिटरमाइन द डिजाइन ट्रैफिक इन क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल, मतलब कैपिटल एन बोला है, क्या दिया है देखो, 4 लेन डिवाइडेड कैरेज वे, ठीक है, सिंगल कैरेज वे पकड़ लो और 4 लेन दिया है, सो योर डी विल बी 40%, मतलब 0.4। इनिशियल ट्रैफिक इन द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब कि ये P दिया है, अगेन आफ्टर कंस्ट्रक्शन दिया है, कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं बोला है, इन द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो कितना है, P इक्वल्स टू है 5000, ओके, एंड 6% इज द ट्रैफिक ग्रोथ रेट, R वैल्यू दिया है 6%, डिजाइन लाइफ यहाँ पे दे दिया है 20 इयर्स, व्हीकल डैमेज फैक्टर भी दे दिया है 5.2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ये वाला भी दिया है, फोल्ड एंड डिवाइडेड कैरेज वे दिया है, अगर लेन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देता so we have to assume it as 40%, लेकिन in this case they have already given lane distribution factor दे दिया, तो you have to use this one only, okay, जो दिया है वो यूज कर दो, अगर नहीं दिया रहता तो ये कंसीडर, ये क्राइटेरिया कंसीडर करके हमको करना था, ओके। सो तो बोला है कैपिटल एन निकालो, सब कुछ दे दिया है, सिर्फ कैपिटल एन निकालना है, तो ये इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू द लास्ट प्रॉब्लम, क्या है, कैलकुलेट द ग्रुप इंडेक्स वैल्यू ऑफ soil using the following parameters. See, group index value of soil using the following parameters, ठीक है, क्या क्या दिया है तुम्हारा, soil sample passing through 0.074 mm sieve, ठीक है, कितना है 50% है, लिक्विड लिमिट है 40%, प्लास्टिक लिमिट है तुम्हारा कितना 20%, तो इसके लिए फॉर्मूला ये है, देखो दिस इज द फॉर्मूला, सबको याद है ये फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक, ग्रुप इंडेक्स इज इक्वल टू क्या था 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD, ठीक है। A का वैल्यू क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू क्या है, परसेंटेज फाइनर पासिंग थ्रू सीव साइज ऑफ कितना है, सीव नंबर 200, ओके, सीव नंबर 200 इज नथिंग बट द सीव साइज कितना है 0.075 mm, सीव को भी सीव नंबर 200 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है, ये वाला कितना होगा, F200 कितना है, एज पर द क्वेश्चन F200 इज योर 50%, ठीक है, तो ये 50 होगा, तो 50 माइनस 35 इज A, B का वैल्यू है 50 माइनस 15, ठीक है, C का वैल्यू है लिक्विड लिमिट माइनस 40, मतलब लिक्विड लिमिट कितना दिया है देखो, लिक्विड लिमिट इज गिवन एज 40%, ठीक है, और D का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, रिमेंबर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है तुम्हारा लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, मतलब कितना है 40 माइनस 20 20, सो योर प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 20, तो दीज आर द फॉर्मूला, ठीक है। फिर वी हैव टू चेक द रेंज, ये सब रेंज 0 to 40 के अंदर है या नहीं, अगर सब कुछ 0 to 40 के अंदर में है तो ठीक है, वही जो भी वैल्यू आएगा वी विल टेक दैट वैल्यू, ठीक है। अगर 0 से कम आया तो फिर हमको 0 ही पकड़ना है, या 40 से ज्यादा आया 40 पकड़ना है, ठीक है, वैसे करते करते जाना है। तो पहले ये A का वैल्यू निकालो तो कितना आ रहा है, फिर सिंपल वहां पे वैल्यू पुट कर देना है, A का वैल्यू कितना आएगा, A का वैल्यू F200 आ रहा है, F200 है 15, सो 50 माइनस 35 15, इट इज इन द रेंज, तो हम लोग A इक्वल्स टू 15 ही पकड़ लेंगे। B का वैल्यू कितना आ रहा है 35, सो अगेन दिस इज विद इन द रेंज, तो हम लोग 35 ही पकड़ेंगे, ठीक है। C का वैल्यू कितना आ रहा है 0,
अगेन विद इन द रेंज में ही है, 0 से 20 में ही है तो 0 पकड़ लेंगे। एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना था? 10 आ रहा है, सो विच इज विद इन द लिमिट, राइट? 20 के लिमिट, मतलब 0 से 20 के बीच में है, तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है सब कुछ। मतलब 15 तो ये तुम्हारा आया कितना, है 50 माइनस 35, फिर आएगा तुम्हारा 0, सी का वैल्यू 0 है और डी का वैल्यू है तुम्हारा 10। ठीक है, तो ये सब करके तुम लोग को सबमिट करना है अभी। ठीक है, अभी कर लो ये जो भी है, ये मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, ये वाला सेकंड और ये सॉरी थर्ड और फोर्थ कैलकुलेट करके सबमिट कर देना है। ओके ओके मैम, ओके मैम। ठीक है, सबको ये क्लियर है ना? हाँ मैम। ओके यस मैम। ठीक है, रुको। ম্যাম हाँ কটা बोलो। করতে হবে? 3টে प्रॉब्लम 5টা एमसीक्यू, ओके मैम। उसमें से एक तो सॉल्व हो गया है, बाकी 2 भी कर लो। ठीक है मैम। मैम 11-15 में सबमिट कर दूंगा। अभी ठीक है, इसके तुम साथ लोग क्लास आज, ठीक है तुम लोग टाइम लेकर ही आज के दिन हम पूरा दिए हैं, विद इन दैट ठीक है। कर लो। ठीक है, थैंक यू मैम। एंड दैट विल बी योर मैम, अटेंडेंस। हाँ, अब क्या यहाँ पे होगा? भी अटेंडेंस। हाँ हाँ बोलो, क्या बोलो? मैम लास्ट वाले का आंसर क्या होगा? लास्ट वाला का देखना पड़ेगा हमको कैलकुलेट करके। तुम लोग कर लो। 6.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6.5 मैम। ठीक है, वो जो आ रहा है वही करो। 6.5 भी आ रहा है तो वही कर दो। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। ओके देन, थैंक यू। सब लोग जा सकते हो। ठीक है, Thank you, ma'am. ओके, हाँ मैम, वेलकम। ठीक है। ओके मैम।